ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਮਾਈਲਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਜਰਾਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਕਲਾਸ +2 ਚੈਪਟਰ 2 ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ used in C language। आओ देखते हैं string handling functions। C language ਵਿੱਚ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ string handling function ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 strlen, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ string length। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ string ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ strrev, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ string reverse। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ string ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 strcat, string concat ਜਾਂ string concatenation। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4 strcpy, string copy। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5 strcmp, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ string compare। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 6 strupr, string upper। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। strlwr, string lower। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਹੋਵੇਗੀ #include string.h। ਇਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ डिटेल ਵਿੱਚ पढ़ाएंगे। फर्स्ट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है strlen। इसका पूरा नाम स्ट्रिंग लेंथ है। इस फंक्शन की वरतों दिती हुई स्ट्रिंग की लंबाई पता करने लई कीती जाती है। यह फंक्शन एक स्ट्रिंग आर्गूमेंट की वरतों करता है। आर्गूमेंट बोलते हैं जिन्हों असी ब्रैकेट विच लिखते हाँ। इसी तरह इंग्लिश मीडियम विच it stands for string length। This function is used to find the length of a string। This function uses one string argument। सिंपल शब्दां च ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, इंटीजर टाइप का। तो एक चीज़ का होर ध्यान रखना है कि ये नल करैक्टर है वो स्ट्रिंग लेंथ का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि जो नल करैक्टर है उस स्ट्रिंग को खत्म करने का काम आता है, ना कि स्ट्रिंग का हिस्सा होगा जो असी काउंट करांगे। हुण असी इहदी एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखिया strlen समाइला। जिहड़ा strlen है यह फंक्शन है, तो जिहड़ा मैं डबल कोट्स लिखिया समाइला यह की है आर्गूमेंट। तुहानूं पहले भी दस्सिया कि यह फंक्शन एक स्ट्रिंग आर्गूमेंट की वरतों करता है। मैं लिखा समाइला, तो समाइला कितने करैक्टर है 5। तो यह मतलब हो गया कि समाइला के अंदर 5 करैक्टर है तो लेंथ कितनी आएगी 5। इसी तरह एक एग्जाम्पल होर देखते हैं strlen आई लव माई इंडिया। तो यह आंसर है 15। 15 किस तरह है, आई विच 1 करैक्टर, लव च 4, माई च 2, इंडिया च 5। टोटल कितने हो गए 1 + 4 5 + 2 7 ते 5 12। तुसीं कहोगे 12 15 किदां आ गया, 15 किदां आया, आई ते लव च एक स्पेस है 13, लव ते माई च 14, माई ते इंडिया च 15। इस करके जिहड़ा स्पेस है वो भी की होएगा स्ट्रिंग लेंथ का पार्ट होगा, बट नल करैक्टर स्ट्रिंग लेंथ का पार्ट नहीं होगा। हुण असीं इस फंक्शन नूं एक प्रोग्राम की मदद नाल समझते हाँ। स्टूडियो ਅਤੇ कोनिया.h ਇਹ ਦੋ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ C ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। string.h ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। void main C ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। char name 20, char ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਹੈ, name string ਹੈ ਤੇ 20 ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ char ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ string।
इंट एल एक एल वेरिएबल लिया है जिहदे विच मैं लेंथ स्टोर करांगा जिहड़ा वेरिएबल असीं लवांगे CLR SCR क्ले स्क्रीन एंटर नेम नेम नूं मैं गेट्स किया इत्थे असीं स्कैनएफ भी वरत सकते हैं बट मैं गेट्स क्यों वरतिया क्योंकि आपां कई बारी स्पेस वाला नेम भी लेना हुंदा है इस करके मैं स्कैनएफ की जगह गेट्स वरतिया L इक्वल टू STR LEN नेम ਇਹਦਾ मतलब है कि नेम की जो भी लेंथ होएगी वो किहदे च आ जाएगी L वेरिएबल च ते L मैं डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का अगे रिजल्ट इक्वल टू %d हुण ते %d क्यों लिया क्योंकि इंटीजर की कंट्रोल स्ट्रिंग की होंदी है %d इत्थे मैं लिया L मतलब है कि जिहड़ी भी आपां स्ट्रिंग रीड करावांगे गेट्स फंक्शन की मदद नाल ओहदी लेंथ है शो करेगा मैं प्रोग्राम नूं कंपाइल करदा मैं लिखिया Alt F9 नाल कंपाइल करदा ते कंट्रोल F9 नाल रन करदा मैं लिखिया एंटर नेम की लिखिया अनुज ते अनुज च कितने करैक्टर है 4 ते इहदी लेंथ कितनी आ गई 4 इसी तरह एक एग्जांपल होर देखते हैं Alt F9 नाल दोबारा प्रोग्राम नूं कंपाइल किया ते कंट्रोल F9 नाल दोबारा रन किया मैं लिखिया एंटर नेम ब्रिजराज ते 7 करैक्टर है बट इत्थे आंसर 8 क्यों आ रहा है क्यों क्योंकि ब्रिज ते राज जी स्पेस है वो इनू एक करैक्टर मान के चलेगा इस करके आंसर की आया 8 सेकंड स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है strrev फंक्शन इसका पूरा नाम स्ट्रिंग रिवर्स है इस फंक्शन की वरतों दिती हुई स्ट्रिंग के करैक्टर्स नूं उल्टाउण लई कीती जाती है यह फंक्शन एक स्ट्रिंग आर्गूमेंट की वरतों करता है इसी तरह इंग्लिश मीडियम विच इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग रिवर्स दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ करैक्टर्स स्टोर्ड इन ए स्ट्रिंग This function uses one string argument. ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ string reverse function ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ string ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਫॉर एग्जांपल strrev ਵੈਲਕਮ strrev string reverse function ਹੈ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀ ਹੈ string argument ਜਾਂ स्ट्रिंग वेरिएबल ਜਾਂ स्ट्रिंग कांस्टेंट कह सकते हाँ तो जो असी इसकी आउटपुट देखा तो की होएगा वेलकम का ई जो सब तो पहले आ जाएगा तो W सब तो लास्ट आ जाएगा तो की बन जाएगा EMOCLEW यह की है वेलकम का रिवर्स हुण असी स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन नूं एक प्रोग्राम की मदद नाल समझते हाँ प्रोग्राम टू यूज strrev फंक्शन इनू बोलते कमेंट लाइन स्टूडियो कोनियो तो स्ट्रिंग तीनों की ने हैडर फाइल्स इस तो पहला जिहड़े असीं प्रोग्राम कीते सी पिछले चैप्टर्स दे विच स्टूडियो ते कोनियो वरतदे सी बट हुण इस चैप्टर च असीं string.h वरतांगे क्योंकि जिहड़े स्ट्रिंग फंक्शन है उन्हां दे लई string.h हैडर फाइल मस्ट हैगी है रिक्वायर्ड है हर सी प्रोग्राम की शुरुआत मेन फंक्शन तो होंदी है इस करके मैं एक ही लगाया void main char str20 इत्थे मैं स्ट्रिंग डिक्लेयर कीती है str जिहदा सही वातो है कितना हो सकदा है 20 क्ले स्क्रीन फंक्शन यूज किया है उस तो बाद printf एंटर वैल्यू ऑफ str कि कंप्यूटर तुहाडे कोलों str की वैल्यू पूछेगा gets str स्ट्रिंग की वैल्यू रीड करेगा इत्थे असीं scanf भी ले सकते हैं बट मैं gets क्यों लिया gets इस करके लिया क्योंकि जिहड़ा scanf है वो स्पेस तो अगले करैक्टर नहीं लैंदा ते gets फंक्शन च ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तुसीं स्पेस वाले करैक्टर भी लै सकते हो तो बिना स्पेस तो भी लै सकते हो उस तो मैं लगाया strrev मेन वर्किंग इस फंक्शन की है कि जेड़ा साडी स्ट्रिंग नूं उल्टाएगा जेड़ी स्ट्रिंग नूं असीं रीड किया है हुण अगे लिखिया रिजल्ट इज परसेंटेज str और जेड़ी भी आपां स्ट्रिंग लई है उहदा रिजल्ट जेड़ा printf च आ जाएगा हुण मान लो मैं प्रोग्राम नूं कंपाइल करदा Alt F9 नाल ते कंट्रोल F9 नाल रन एंटर वैल्यू ऑफ str मैं स्ट्रिंग की वैल्यू को लई हेलो तो जो इसकी आउटपुट आएगी रिजल्ट आएगी वो की आएगा OLLEH तुहानूं पहले भी दस्सिया है कि जिहड़ा स्ट्रिंग फंक्शन है स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन है वो की करता है जिहड़ा स्ट्रिंग का पहला करैक्टर है उन्होंने लास्ट करैक्टर बना दिंदा है तो जिहड़ा लास्ट करैक्टर उन्होंने पहला करैक्टर बना दिंदा है नैक्सट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है strcat इसका पूरा नाम स्ट्रिंग कंकैट है इस फंक्शन की वरतों दो स्ट्रिंग्स नूं आपस विच जोड़न लई कीती जाती है यह फंक्शन दो स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स की वरतों करता है इंग्लिश मीडियम इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग कंकैट
This function is used to combine two strings together. This function uses two string arguments. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ str_len ਤੇ str_re ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ string argument ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ string arguments ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ string ਨੂੰ पहली स्ट्रिंग दे लास्ट विच जोड़ता है। मतलब कि जेकर साडे कोल दो स्ट्रिंग्स हैगियां ते ऐ की करेगा दूजी स्ट्रिंग नू पहली स्ट्रिंग दे लास्ट विच जोड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखिया strcat bridge ते राज। strcat फंक्शन है स्ट्रिंग concat, bridge स्ट्रिंग 1 है ते राज स्ट्रिंग 2 है। जदों मैं strcat फंक्शन यूज करांगा तो दोनों स्ट्रिंग्स इकट्ठियां हो जाएंगियां, कंबाइन हो जाएंगियां ते आंसर की आएगा ब्रिज राज। हुण असी strcat फंक्शन नू एक प्रोग्राम दी मदद नाल समझदे हां। प्रोग्राम टू यूज strcat फंक्शन एक कमेंट लाइन है std.h, conio.h ते string.h ਇਹ तीनों हेडर फाइल्स ने। तुहानूं पहले भी दस चुके हैं कि जदों असी कोई स्ट्रिंग फंक्शन करांगे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ string.h हेडर फाइल ऐड करनी पवेगी। सी प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा void main फंक्शन तो होंदी है ते नाल करली ब्रेसिस तो char fname ते char lname 2020। जिहड़ा char fname है एम एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप दा फर्स्ट नेम दे लई, lname लास्ट नेम दे लई। क्योंकि मैं strcat फंक्शन यूज कर लगा ते strcat फंक्शन दे अंदर सानू दो स्ट्रिंग्स की जरूरत पैनी है। क्लियर स्क्रीन फंक्शन स्क्रीन को क्लियर करने लई आउटपुट स्क्रीन नो एंटर फर्स्ट नेम गेट्स fname, मैं फर्स्ट नेम रीड किया, फिर एंटर लास्ट नेम गेट्स lname, फिर लास्ट नेम नो रीड किया। तुसी गेट्स की जगह ते scanf भी वरत सकते हो। strcat fname, lname। हुण यह फंक्शन की करेगा फर्स्ट नेम ते लास्ट नेम दोनों नू कंबाइन कर देगा। जो असीं रिजल्ट शो करांगे असीं सिर्फ की दांगे fname, असीं lname नहीं लवांगे, fname लवांगे। वो fname क्यों लै रहे हैं क्योंकि fname, lname मैं strcat फंक्शन च वरते हैं ते यह दोनों नू कंबाइन कर रहे हैं। तो जो आप fname लवांगे तो ऑटोमैटिकली जिहड़ा strcat फंक्शन है lname नू ਇਹਦੇ लास्ट विच जोड़ देगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक गल दा ध्यान रखना है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ string concat यूज करोगे तो दोनों स्ट्रिंग का जिहड़ा साइज है मिला के 20 तो वध नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ओवरफ्लो की कंडीशन आ सकती है तो आउटपुट गलत हो सकती है। इसलिए साइज जिहड़ा स्ट्रिंग के अकॉर्डिंगली सैट करना है। हुण असीं इस प्रोग्राम नू रन करके देखते हैं, कंपाइल करके देखते हैं। Alt F9 नाल कंपाइल किया ते कंट्रोल F9 नाल रन किया। मैं लिखा एंटर फर्स्ट नेम अनुज, एंटर लास्ट नेम कुमार, ते जदों हुण आएगा रिजल्ट साडा fname ते की आएगा अनुज कुमार। fname च की होएगा जिहड़ा lname है वो strcat फंक्शन दे नाल इहदे लास्ट विच जुड़ के। नेक्स्ट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है strcpy फंक्शन। इसका पूरा नाम स्ट्रिंग कॉपी है। इस फंक्शन की वरतों एक स्ट्रिंग की कीमत नू दूजी स्ट्रिंग विच कॉपी करने लई कीती जाती है। यह फंक्शन दो स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स की वरतों करता है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग कॉपी। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कॉपी वैल्यू ऑफ वन स्ट्रिंग वेरिएबल इन अनदर स्ट्रिंग वेरिएबल। दिस फंक्शन यूजेस टू स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स। सिंपल शब्दां च कह सकते हैं कि जिहड़ा स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन है एक स्ट्रिंग की कीमत नू दूजी स्ट्रिंग विच कॉपी करता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ स्ट्रिंग ਦੇ ਅੰਦਰ वैल्यू ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ स्ट्रिंग ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ स्ट्रिंग ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਦੂਜੀ स्ट्रिंग ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। फॉर एग्जांपल उदाहरण वजों मैं की कीता एक स्ट्रिंग ਲਈ है name1 ਤੇ ਇੱਕ ਲਈ है name2। name1 ਦੇ अंदर मैं लिया स्माइला ते name2 ਦੇ अंदर मैं कुछ नहीं लिया। ਹੁਣ ਇੱਥੇ मैं फंक्शन लगाना strcpy name2, name1। ਇਹਦੇ सिंटैक्स ਵਿੱਚ पहले name2 आएगा name1 आएगा, उस तो बाद name2 ਦਾ मतलब कि पहले सेकंड स्ट्रिंग आएगी फिर फर्स्ट स्ट्रिंग आएगी। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ name1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ name2 ਚ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਤੇ name1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਾਈਲਾ ਹੈ ਤੇ name2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮਾਈਲਾ। ਹੁਣ ਦੀ ਸੋਚ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਸਮਾਈਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ 5 ਹੈ, 5 ਕਰੈਕਟਰ ਪਰ 6 ਕਿਉਂ ਲਏ ਹੈ क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पहले भी दस चुके हैं कि ਜਿਹੜਾ स्ट्रिंग हैगा वो लास्ट करैक्टर नल ਲਈ रिजर्व रखता है, इस करके ਅਸੀਂ एक स्पेस ਵੱਧ ਲਈ है।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ इसे फंक्शन ਨੂੰ एक प्रोग्राम की मदद नाल समझते हाँ। प्रोग्राम टू यूज strcpy फंक्शन, इनू कमेंट लाइन बोलते हैं। इस तो बाद स्टूडियो कोनियो तो स्ट्रिंग, ये तीनों हैडर फाइल्स ने जिहड़ियां असीं प्रोग्राम च वरतांगे। तो तुहानूं पता है कि सी प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा वॉइड मेन फंक्शन तो होंदी है। फिर आपां स्टार्टिंग ब्रेस लगाई है, कैर नेम 1 स्माइला, कैर नेम 2 6। नेम 1 साडी पहली स्ट्रिंग है तो नेम 2 साडी दूसरी स्ट्रिंग है। फिर आपां क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज किया है, इत्थे सिंटैक्स लगाया है स्ट्रिंग कॉपी नेम 2 नेम 1। ਇਹਦਾ अर्थ है कि नेम 1 की कीमत किहदे च कॉपी हुंदी पई है, नेम 2 च। जदों असीं नेम 1 नूं प्रिंट करांगे तो की आएगा, स्माइला। ते जदों नेम 2 नूं प्रिंट करांगे तां भी की आएगा, स्माइला। हुण नेम 2 तो पहले इत्थे मैं /n लगाया है, असीं +1 च ही पढ़िया। /n दा मतलब हुंदा नैक्सट लाइन जां न्यू लाइन, क्योंकि जे असीं /n नहीं लगावांगे तो जिहड़ी कीमत है नेम 2 स्ट्रिंग दी वो भी सेम लाइन च आ जाएगी, इस करके /n लगाया। हुण असीं इस प्रोग्राम नूं Alt F9 नाल कंपाइल करके देखते हाँ और Ctrl F9 नाल रन करके देखते हाँ। हुण देखो ठीक साडे सामने नजर आ गया कि नेम 1 च ते पहले स्माइला सी, लेकिन नेम 2 च भी स्माइला आ गया, क्योंकि असीं इह की कीता है स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज किया है, strcmp। इसका पूरा नाम है स्ट्रिंग कंपेयर। इस फंक्शन की वरतों दो स्ट्रिंग्स की तुलना करने लई कीती जाती है। यह फंक्शन दो स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स की वरतों करता है। इस तरह इंग्लिश मीडियम इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग कंपेयर। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कंपेयर वैल्यू ऑफ टू स्ट्रिंग्स। दिस फंक्शन यूजेस टू स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स। सिंपल शब्दां में कह सकते हैं कि यह फंक्शन दो स्ट्रिंग्स नूं चेक करता है कि की वो सेम ने जां वख-वख। यदि उदाहरण पढ़न तो पहला तुहानूं मैं ASCII कोड बारे दसना चाहांगा। ASCII कोड हुंदे ने अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जिस तरह कंप्यूटर दे विच बाइनरी कोड 0-1 दी फॉर्म च हुंदे ने, उसी तरह ASCII कोड जिहड़े साडे कीबोर्ड दी लैंग्वेज अल्फाबैट्स हुंदे ने ओहदे कोड हुंदे ने। ओहदा चार्ट तुहानूं दिखाउण जा रहा हां। जिहड़े ASCII कोड हुंदे ने यह कैपिटल A दे लई 65 दा कोड हुंदा है ते कैपिटल B लई 66। इसी तरह कैपिटल Z का कोड की हुंदा है 90। छोटी ABC छोटी A का कोड हुंदा 97 ते छोटी Z का कोड हुंदा 122। ते यह तुसीं याद रखना है कि 65 तो लैके 90 तक कैपिटल ABC ते 97 तो लैके 122 छोटी ABC। स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन तुहानूं तां ही समझ आएगा जेकर तुहानूं ASCII चार्ट का ज्ञान होएगा जां ASCII टेबल की नॉलेज होवेगी। हुण असीं इहनूं किसी एग्जाम्पल नाल समझदे हां। एग्जाम्पल 1 है स्ट्रिंग कंपेयर A, जेकर दोनों स्ट्रिंग्स की कीमत सेम होवे तां नतीजा 0 आंदा है, नतीजा 0 आवेगा। इत्थे नतीजा 0 क्यों आया है? क्योंकि मैं दोनों जगह की लिया है, पहली स्ट्रिंग भी कैपिटल A लई है ते दूसरी भी कैपिटल A लई है। ते कैपिटल A की ASCII वैल्यू हुंदी है 65। जो 65 माइनस 65 करांगे तो आंसर कितना आएगा, 0। इसी तरह एक होर एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रिंग कंपेयर A। इत्थे जिहड़ी मेरी पहली स्ट्रिंग है वो कैपिटल A है, जिहड़ी दूसरी स्ट्रिंग है वो स्मॉल a है। जेकर पहली स्ट्रिंग की ASCII वैल्यू दूजी स्ट्रिंग की ASCII वैल्यू नालों घट है तां जिहड़ा रिजल्ट है वो की आएगा, वो आएगा -1। मतलब कैपिटल A की कीमत होंदी है 65 ते स्मॉल a की कीमत होंदी है 97। जो 65 विचों 97 माइनस करांगे तो कितना आया, -28। तो जो साडे कोल नैगेटिव कीमत आएगी तो उन्होंने असीं की मान के चलांगे -1। अब एक एग्जाम्पल होर देखते हाँ। जेकर पहली स्ट्रिंग की वैल्यू स्मॉल a है तो दूसरी स्ट्रिंग की वैल्यू कैपिटल A है। A की वैल्यू तुहानूं पहले दस्सिया है कि स्मॉल a की वैल्यू कितनी होंदी है, ASCII वैल्यू 97 ते कैपिटल की कितनी होंदी है 65। जो 97 माइनस 65 करांगे तो आंसर कितना आया 28। आंसर में कितना आया, रिजल्ट 1। मतलब जेकर पहली स्ट्रिंग की ASCII वैल्यू दूजी स्ट्रिंग की ASCII वैल्यू नालों वध है तां रिजल्ट की आएगा, +1 जां 1। हुण असीं स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन नूं एक प्रोग्राम की मदद नाल समझदे हां। प्रोग्राम टू यूज strcmp फंक्शन, दिस इज कॉल्ड कमेंट लाइन, स्टूडियो कोनियो ते स्ट्रिंग, ये तीनों हैडर फाइल्स ने तुहानूं पहले भी काफी बार दस चुके हैं। वॉइड मेन सी प्रोग्राम की शुरुआत करली ब्रेस भी चाहिए है,
कैर नेम ते कैर नेम 1 इत्थे मैं दो स्ट्रिंग्स लईआं ने, एक नेम ते एक नेम 1, क्योंकि तुहानूं पहले दस चुकिया कि स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन च सानूं दो स्ट्रिंग्स की जरूरत होंदी है। इंट एक्स एक वेरिएबल मैं कंपैरिजन ले लिया है, CLR SCR क्लियर स्क्रीन। एंटर नेम सब तो पहला मैं पहली स्ट्रिंग नेम नूं गेट्स करवाया, उस तो बाद एंटर नेम, फिर गेट्स नेम 1 ते नेम नूं गेट्स करवाया। इहदी जगह तां स्कैन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। इत्थे लिखिया मैं x इक्वल टू strcmp नेम कोमा नेम 1। इत्थे स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन नेम ते नेम 1 दोनों नूं कंपेयर करेगा कि दोनों सेम है या अलग अलग है। इत्थे x लिया है ते x इंटीजर टाइप है, जिहड़ा चेक करेगा कि दोनों का कंपैरिजन करके 0 आंदा या नहीं आंदा। हुण तुसीं सोचदे होवोगे इत्थे मैं डबल इक्वल टू क्यों लगाया। सी लैंग्वेज विच दो तरह के इक्वल टू यूज होंदे ने, सिंगल ते डबल। जिहड़ा सिंगल इक्वल टू है उहदा मतलब हुंदा वैल्यू असाइन करना, ते जिहड़ा डबल इक्वल टू है इहदा मतलब हुंदा वैल्यू नूं कंपेयर करना। जेकर दोनों स्ट्रिंग सेम होणगियां तां printf च मैसेज आएगा आउटपुट स्क्रीन च बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम। अगर दोनों वख-वख ने तो मैसेज आएगा बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। हुण असीं प्रोग्राम नूं Alt F9 नाल कंपाइल करके देखते हैं ते कंट्रोल F9 नाल रन करके देखते हैं। जो प्रोग्राम चलता है printf सब तो पहले चलेगा एंटर नेम, मैं नेम गेट्स कराया तो की एंटर किया अनुज। उस तो बाद एंटर नेम 1, हुण नेम 1 नूं गेट्स कराया वो भी की किया अनुज। हुण देख सकते हो कि दोनों स्ट्रिंग्स सेम है। सेम का मतलब है कि दोनों स्मॉल लैटर च लिखिया ने, इस करके आंसर क्या आएगा बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम। strLWR फंक्शन, इसका पूरा नाम स्ट्रिंग लोअर है। यह फंक्शन अपर केस स्ट्रिंग नूं लोअर केस विच बदलता है। यह फंक्शन एक स्ट्रिंग आर्गूमेंट की वरतों करता है। इंग्लिश मीडियम च इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग लोअर। दिस फंक्शन कन्वर्ट्स अपर केस स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। दिस फंक्शन यूजेस वन स्ट्रिंग आर्गूमेंट। सिंपल शब्दों में असीं कह सकते हैं कि यह फंक्शन की करता है, जेकर असीं कोई स्ट्रिंग अपर केस विच लई है यह की करेगा उन्होंने छोटे अखरां विच बदल देगा। मतलब यही वड्डी ABC कोई स्ट्रिंग लिखी है तो उन्होंने छोटी ABC विच कन्वर्ट कर देगा। तो लेकिन जेकर असीं छोटे अक्षरां विच लिखी है तो छोटे अक्षरां विच ही रहेगी, उन्होंने कैपिटल च कन्वर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग लोअर फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण वजों strLWR तो डबल कोट्स में लिखे है ब्रिज राज। strLWR की है स्ट्रिंग फंक्शन ते ब्रिज राज की है स्ट्रिंग। ते जदों यदि आउटपुट आएगी रिजल्ट आएगा वो की आएगा ब्रिजराज। फर्क की है दोनों च, मैं कैपिटल लैटर विच डबल कोट्स स्ट्रिंग लई सी ते इहदा रिजल्ट की आया, यानी कि किता नूं कन्वर्ट करता स्मॉल लैटर्स विच। हुण असीं इसे फंक्शन नूं एक प्रोग्राम की मदद नाल समझदे हां। प्रोग्राम टू यूज strLWR फंक्शन, इस लाइन नूं कमेंट लाइन बोलदे। स्टूडियो कोनियो ते स्ट्रिंग ये तीनों की ने हैडर फाइल्स। वॉइड मेन फंक्शन तुहानूं पता है कि सी प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा मेन फंक्शन तो होंदी है। स्टार्टिंग करली ब्रेस, उस तो बाद कैर नेम 6 स्माइला। नेम साडी स्ट्रिंग है, 6 ਉਹਦਾ साइज है, तो स्माइला की है साडी स्ट्रिंग वेरीएबल ਜਾਂ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। ਇਹਨੂੰ मैं कैपिटल लैटर च लिखिया। क्लियर स्क्रीन फंक्शन strLWR नेम एक्चुअली यह फंक्शन मेन काम करेगा, जिहड़ा की करेगा कि जिहड़ी मैं स्ट्रिंग लई है उन्होंने स्मॉल लैटर च कन्वर्ट करेगा। अगर लिखा रिजल्ट इक्वल टू %s नेम, इसका मतलब है कि जो असीं प्रोग्राम रन करांगे तो जिहड़ी यह लाइन है यह साडी रिजल्ट नूं शो करेगी, आउटपुट नूं शो करेगी। हुण असीं प्रोग्राम नूं Alt F9 नाल कंपाइल करते हैं और कंट्रोल F9 नाल रन करते हैं तो आउटपुट की आई है स्माइला। दोनों फर्क की है कि मैं स्ट्रिंग की लई सी कैपिटल लैटर च स्माइला, लेकिन जो इनू रन किया प्रोग्राम नूं तो यह की आ गया स्मॉल लैटर विच कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट फंक्शन है strUPR। जिस तरह असीं लोअर फंक्शन पढ़े उसी तरह एक फंक्शन किया गया अपर। इसका पूरा नाम स्ट्रिंग अपर है। यह फंक्शन लोअर केस स्ट्रिंग नूं अपर केस विच बदलता है। यह फंक्शन एक स्ट्रिंग आर्गूमेंट की वरतों करता है। इंग्लिश मीडियम इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग अपर। दिस फंक्शन कन्वर्ट्स लोअर केस स्ट्रिंग इनटू अपर केस। दिस फंक्शन यूजेस वन स्ट्रिंग आर्गूमेंट। जिस तरह लोअर फंक्शन की करता सी अपर केस वाली स्ट्रिंग नूं छोटे अक्षरां च बदलता सी, बट यह जिहड़ा strUPR फंक्शन है
यह की करेगा कि जेकर असी कोई स्ट्रिंग स्मॉल लैटर च लिखी है तो उन्होंने की करेगा कैपिटल लैटर विच कन्वर्ट कर देगा, तो लेकिन जेकर कैपिटल लैटर च लिखी है तो की करेगा उन्होंने कैपिटल विच ही रहन देगा। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण वजों STRUPR हूँ मैं डबल कोट्स ब्रिजर लिखा है, लेकिन जी मैं स्ट्रिंग लिखी है डबल कोट्स विच है स्मॉल लैटर च, तो लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो किदा हो जाएगा कैपिटल लैटर च। हुण असी STRUPR फंक्शन नूं एक प्रोग्राम की मदद नाल समझते हाँ, जिस तरह असी लोअर फंक्शन का बनाया सी प्रोग्राम, उसी तरह अपर केस का प्रोग्राम भी बनाया। प्रोग्राम टू यूज STRUPR फंक्शन इनू की बोलते इस लाइन नूं, यस इस लाइन नूं बोलते हैं कमेंट लाइन। स्टूडियो कोनियो द स्ट्रिंग तिन्हां की बोलते हैं, तिन्हां नूं बोलते हैं हैडर फाइल्स। वॉइड मेन किस काम आंदा है, प्रोग्राम की शुरुआत करने लई। फिर स्टार्टिंग करली ब्रेस चाहिए है, कैर नेम 6 स्माइला। हुण इत्थे स्माइला मेरी की है स्ट्रिंग दी वैल्यू, ते नेम की है स्ट्रिंग। क्लियर स्क्रीन। STRUPR नेम यह फंक्शन की करेगा, STRUPR नेम की जिहड़ी मैं स्ट्रिंग लई है उन्होंने कैपिटल लैटर च कन्वर्ट करेगा, मतलब कि स्माइला जो स्मॉल लैटर च लई है तो यह फंक्शन नूं कैपिटल लैटर च कन्वर्ट कर देगा। प्रिंटफ रिजल्ट इक्वल टू परसेंटेज नेम। परसेंटेज तुहानूं फिर दस देना चाहना कि परसेंटेज आपां कदों लैंदे हैं जदों स्ट्रिंग टाइप वैल्यू की वैल्यू नूं प्रिंट कराना होवे। तो हुण असीं इस प्रोग्राम नूं Alt F9 नाल कंपाइल करते हैं और कंट्रोल F9 नाल रन करते हैं, तो तुसीं रिजल्ट देख रहे हो कि स्माइला किहदे च आ गया कैपिटल च, जबकि जदों मैंने डिक्लेयर किया सी तो किहदे च लिया सी स्मॉल केस विच। इस तरह ही कह सकते हैं कि जिहड़ा STRUPR फंक्शन है यह स्मॉल केस वाली स्ट्रिंग नूं अपर केस विच बदलता है, तो जेकर स्ट्रिंग अपर केस च होगी तो उन्होंने अपर केस विच ही रहन देगा, कोई चेंज नहीं करेगा। जेकर तुहाडी कोई क्वेरी क्वेश्चन ਜਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ है तो कमेंट सैक्शन में जरूर दसना। ਅਤੇ जेकर तुसी अजे तक मेरे इस YouTube चैनल ਨੂੰ लाइक ਅਤੇ सबसक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसनूं लाइक ਅਤੇ सबसक्राइब जरूर करो ਅਤੇ बैल आइकन ਨੂੰ प्रेस करना ना भूलो, ਤਾਂ जो ਤੁਹਾਨੂੰ मेरिया नवीं वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।